Hello students, very good morning. Today in this video we are going to learn the lesson number 1 of unit 5 and the name of the lesson is Fashion Victims. आज हम आपके इंग्लिश बुक के यूनिट 5 के लेसन नंबर 1 को पढ़ेंगे और लेसन का नाम है फैशन विक्टिम्स यानी फैशन पीड़ित, है ना, जो कि फैशन से पीड़ित हुए हैं, शिकार हुए हैं, उनके बारे में. So listen carefully and try to understand. ध्यान से सुनिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. Let's start. People wear clothes for several reasons. They wear clothes to keep themselves warm and dry. Some wear clothes that indicate their religion. Some wear clothes of a particular type or color to keep off evil spirits. Soldiers wear special dresses to terrify their enemies in battle. लोग यानी पीपल कई कारणों से कपड़े पहनते हैं. वे खुद को गर्म और ड्राई रखने के लिए कपड़े पहनते हैं. कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनके धर्म को दर्शाते हैं. कुछ लोग बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए एक विशेष प्रकार या रंग के कपड़े पहनते हैं. युद्ध में अपने दुश्मनों को डराने के लिए सैनिक यानी सोल्जर्स विशेष पोशाक यानी कपड़े पहनते हैं. But probably the most important reason of wearing clothes is to make an impression on others. That has been true throughout the ages. In fact, the first clothes were probably worn more for decoration than for protection against weather. It is for this reason that the style of clothes has been changing with fashion. लेकिन शायद कपड़े पहनने के सबसे महत्वपूर्ण कारण दूसरे पर अपनी छाप छोड़ना है यानी टू इम्प्रेस अदर्स. ये युग युग से सत्य रहा है यानी That has been true throughout the ages. वास्तव में पहले कपड़े शायद मौसम से सुरक्षा के लिए, सजावट के लिए अधिक पहने जाते थे. ये कारण है कि फैशन के साथ साथ कपड़ों का स्टाइल भी बदलता रहा है. Next, now what is fashion? So here is one question. अब फैशन क्या है? Fashion means a popular style of clothes, hair, etc. at a particular time or place. It is but natural that people living in society love to wear the type of clothes most others are wearing. In other words, they love to follow the fashion of the day. Fashion का अर्थ है किसी विशेष समय या स्थान पर कपड़े, बाल आदि के लोकप्रिय शैली यानी लोगों का जो ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं उस शैली को फैशन कहा जाता है. ये स्वाभाविक है कि समाज में रहने वाले लोग उसी प्रकार के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो अन्य लोग पहनते हैं. दूसरे शब्द में वे दिन के फैशन का पालन करना पसंद करते हैं यानी आज के दिन में जो फैशन चल रहा है उस चीज़ को पहनना लोग पसंद करते हैं. No one likes to look odd among others. Therefore, there is nothing wrong if we follow the fashion of the day. But sadly, the meaning of fashion has changed today. Now, fashion doesn't mean a popular style of clothing. For a few, fashion may be a way to express their personality, but for most others, it is a way to show off their riches. It is a way to show that they belong to a specific group or to suggest that they are important, wealthy and successful people. यानी successful people. किसी को भी दूसरे के बीच अजीब दिखना पसंद नहीं है यानी कोई भी अलग दिखना पसंद नहीं करता है. इसलिए अगर हम दिन के फैशन का पालन करते हैं यानी जो फैशन अभी चल रहा है उसको पालन करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है.
लेकिन खुद की बात है, दुख की बात है कि आज फैशन का मतलब बदल गया है। अब फैशन का मतलब कपड़ों को लोकप्रिय शैली नहीं है। कुछ लोगों के लिए फैशन उनके व्यक्तित्व को व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अधिकांश के लिए ये उनके धन को दिखाने के लिए, यानी वो कितने रिच है वो दिखाने के लिए एक तरीका है। ये दिखाने का एक तरीका है कि वे एक विशिष्ट समूह से संबंधित हैं या सुझाव देते हैं कि वे महत्वपूर्ण, धनी और सफल लोग हैं। मीन्स इट इज़ ए वे टू शो, यानी फैशन इज़ ए वे टू शो दैट दे बिलोंग टू ए स्पेसिफिक ग्रुप और टू सजेस्ट दैट दे आर इम्पोर्टेंट, वेल्दी एंड सक्सेसफुल पीपल। Next, today a strange thing had happened. Sometimes a particular style of dress comes into fashion, but as soon as it becomes popular with most people, it goes out of fashion. Thus, the very meaning of fashion has changed. Fashion no longer means a popular style of clothing. Now it means a style of clothing which only the very rich wear, and stop wearing it as soon as common people start wearing it. आज एक अजीब बात होता है, यानी हुई है। कभी कभी पोशाक, यानी जो कपड़े होते हैं, पोशाक की एक विशेष शैली फैशन में आ जाती है, एक स्टाइल है ना, विशेष स्टाइल आ जाता है। लेकिन जैसे ही ये ज़्यादातर लोगों के बीच में लोकप्रिय होता है, ये फैशन से बाहर हो जाता है। इस प्रकार फैशन का अर्थ ही बदल गया है। फैशन का मतलब अब कपड़ों की एक लोकप्रिय शैली नहीं है। अब इसका मतलब कपड़ों की एक शैली है जो केवल बहुत अमीर लोग पहनते हैं, और जैसे ही आम लोग इसे पहनना शुरू करते हैं, इन्हें पहनना बंद कर देते हैं। यानी जब सब लोग पहनने चालू करते हैं तो जो धनी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फैशन हो गया बोल देते हैं। Fashion has now become a big industry. It is not the common people who decide a popular style of clothing. It is the big rich designers who do this. They change fashions year after year and season after season for their own profit. जो फैशन है अब एक बड़ा उद्योग यानी इंडस्ट्री बन गया है। ये आम लोग नहीं हैं जो कपड़ों की एक लोकप्रिय शैली तय करते हैं। ये बड़े अमीर डिज़ाइनर हैं जो ऐसा करते हैं, यानी वो लोग स्टाइल फैशन डिज़ाइन करते हैं। वे अपने फ़ायदा के लिए साल दर साल फैशन और सीज़न दर सीज़न यानी अगले सीज़न में सारे डिज़ाइन को बदल रहते हैं। नेक्स्ट, द फैड फॉर फैशन हैज़ ए वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन यंग माइंड्स। The fad for fashion has a very negative effect on young mind. Means फैशन की जो फैड होता है, फैड मीन्स क्रेजी, समथिंग दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, का युवा दिमाग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जो ये फैशन का है, फैशन का जो ज़माना चल रहा है वो यंग लोगों के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। Many young boys and girls start paying more attention to the decoration of their bodies than the enrichment of their minds. Some follow fashion because of peer pressure. They want to look and behave like others of their age. When they take this desire to its extreme, they became fashion victims instead of fashionable. यहाँ पे बहुत से युवा मतलब बहुत से यंग लड़के लड़कियां अपने मन की समृद्धि के अपेक्षा यानी एनरिचमेंट ऑफ देयर माइंड्स के बदले वो क्या करते हैं,
अपने शरीर की सजावट पर अधिक ध्यान लगाते हैं। कुछ साथियों के दबाव के कारण फैशन का पालन करते हैं। वे अपने उम्र के अन्य लोगों की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहते हैं। जब वे इस इच्छा को चरम पर यानी आखिरी सीमा के पर ले जाते हैं तो वे फैशन के बजाय फैशन का शिकार बन जाते हैं, यानी they became fashion victims instead of fashionable. Next, this happened to a girl named Alicia. Her classmates never cared whether a particular garment suited someone or not. The only thing they cared about was the designer label. A designer label is a label of a particular brand of clothing that has been made by a leading fashion company. ऐसा एलिशा नाम की लड़की के साथ हुआ। उसके सहपाठियों ने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कोई विशेष परिधान किसी के अनुकूल है या नहीं। केवल एक चीज़ जिसकी उन्हें परवाह थी वो थी डिज़ाइनर लेबल, यानी जो कपड़े में लेबल लगता है। एक डिज़ाइनर लेबल कपड़े के एक विशेष ब्रांड का लेबल होता है जिसे एक प्रमुख फैशन कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी जो कपड़े में कौन सा कंपनी का कपड़ा है, जो ब्रांड होता है उनका नाम पे जो लेबल लगता है। When the brand of jeans known as Tommy Hilfiger became trendy, Alice's classmates teased her because they knew she could never afford a pair of the costly Tommy Hilfiger. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब टॉमी हिल्फिगर के नाम से जानी जीन्स का ब्रांड बन गया तो एलिसा के सहपाठियों ने उनके क्लासमेट ने उससे चिढ़ाया, क्योंकि वे जानते थे कि वो कभी भी महंगे टॉमी हिल्फिगर ड्रेस को एक जोड़ी नहीं खरीद सकती है। Next, Alicia could no longer stand the sneering looks of her classmates. Finally, she became so unhappy that she tried to steal a pair of Tommy Hilfiger from a shop. An assistant in the shop saw her wearing a new pair under her old jeans and threatened to call the police to arrest her for shoplifting. Alicia burst into tears. So what happened one day? क्या हुआ अलीसा के लाइफ में एक दिन? देखिए, अलीसा अब अपने सहपाठियों यानी क्लासमेट के उपहासपूर्ण, जो कि वो लोग मजाक करते थे, उस रूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अंत में आखिरी में वो इतनी मजबूरी हो गई कि उसने एक दुकान से टॉमी हिल्फिगर की एक जोड़ी जीन्स चुराने की कोशिश की। दुकान के एक सहायक यानी असिस्टेंट ने उसे अपनी पुरानी जीन्स के नीचे एक नया जोड़ी पहने देखा और उसे दुकानदार के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाने की धमकी दी। तो फिर क्या हुआ, एलिसा फूट कर रोने लगी। Fortunately, the shopkeeper was a kind-hearted person and he decided not to call the police. However, he called Alice's father, but finding him a poor man, he decided not to charge anything for the jeans. He gave that pair of jeans to her as a gift. तो जब अलिसा रोने लगी तो क्या हुआ, फॉर्चुनेटली जो दुकानदार था एक दयालु व्यक्ति था और उसने पुलिस को नहीं बुलाने का फैसला किया। हालांकि उसने एलिसा के पिता को बुलाया, लेकिन उसे एक गरीब आदमी पाकर उसने जीन्स के लिए कुछ भी चार्ज यानी पैसा नहीं लिया। उसने जीन्स की वो जड़ी उसे गिफ्ट के रूप में दी, यानी एलिसा को गिफ्ट के रूप में वो दुकानदार ने दे दिया। Next, Alicia came back home with her father, but she was very unhappy. She felt she had brought great shame on her parents. Her elder sister Anushka tried to cheer her up.
She made clever little changes to Alicia's old clothes. Now her clothes had a new and modern look. Anushka was confident that Alicia could show she was in a fashion in her own way, a way her classmates might soon be jealous of or even admire. So यहाँ पे क्या हुआ? अलीशा अपने पिता के साथ घर वापस आ गई, लेकिन वो बहुत दुखी थी। उसने महसूस किया कि उसने अपने माता पिता पर बहुत शर्म की है, यानी जो काम उसने किया, चोरी किया, वो अपने माता पिता के लिए बहुत लज्जा का कारण है। उनकी बड़ी बहन अनुष्का ने उन्हें खुश करने की कोशिश की। उसने अलीशा के पुराने कपड़ों में चतुराई यानी क्लेवर से छोटे छोटे बदलाव किए। अब उसके कपड़ों में नया और मॉडर्न लुक आ गया था। अनुष्का को विश्वास था कि अलीशा ये दिखा सकती है कि वो अपने तरीके से फैशन में है। एक तरह से उसके क्लासमेट्स को जल्द ही जलन हो सकती है या प्रशंसा भी हो सकती है, यानी जब वो ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े है ना डिज़ाइनर टाइप का पहन के जाएगी तो उनके क्लासमेट उनको क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे। द नेक्स्ट, a fashion follower can become a fashion victim, यानी एक फैशन फॉलोवर यानी जो फैशन को फॉलो करते हैं वो फैशन का शिकार बन सकता है। It is good to be fashionable, but it is never desirable to be a fashion victim. Whether your clothes are of the latest fashion or not, you should always choose something that suits both your appearance and your personality. Fashion should be original and individual, not a uniform. यहाँ पे ये बताया गया है कि आपके कपड़े नवीनतम फैशन के हैं या नहीं। आपको हमेशा कुछ ऐसा चुनना चाहिए जो आपके रूप और आपके व्यक्तित्व दोनों के अनुकूल हो। फैशन मूल और व्यक्तिगत होना चाहिए, वर्दी नहीं। मीन्स फैशन शुड बी ओरिजिनल एंड इंडिविजुअल, नॉट ए यूनिफॉर्म। ये हमारा यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, फैशन हमारा ओरिजिनल होना चाहिए और हमें ऐसा चूज़ करना है जो कि हमारा अपीयरेंस के साथ साथ हमारा पर्सनैलिटी को भी सूट करेगा। सो here we learned in this video we learned about fashion victims। इस वीडियो में हमने फैशन विक्टिम्स के बारे में पढ़ा है, कैसे यंग पीपल है ना, यंग बच्चे जो जवान होते हैं वो कैसे फैशन का विक्टिम होते हैं। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।